इस सैंक्चुरी ऑफ ग्लोरी में आप सबको नमस्कार। मेरा नाम पैट्रिक है और मैं HSG एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हूं और तीसरे रात में आप सबका स्वागत है PB 2021 में, जो असामान्य है। आज रात अगर आप पहली बार आप PB 2021 में आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप जो है हमारे प्रचारक के वचनों से आशीषित हुए हैं। आज रात हमें बहुत ही खुशी है कि बिशप लडोना ऑसबॉर्न हमारे बीच में हैं। इस सैंक्चुरी ग्लोरी परिवार के सारे सदस्य, मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत ही उत्साहित हैं, जैसे मैं भी बहुत उत्साहित हूं। आप अपने उत्साह को इस चैट बॉक्स में टाइप करते हुए कह सकते हैं, मैं बहुत उत्साहित हूं और मैं उम्मीद रखता हूं। हर साल हमारा प्रोजेक्ट बरनबास के लिए इकट्ठा होना इस बात को साबित करती है कि इस HSG जो है एक विश्वव्यापी प्रेरिताई कलीसिया, एक आंदोलन है और इस साल परमेश्वर कलीसिया के दर्शन और व्यक्तिगत जीवन के दर्शन का प्रगति करता आ रहा है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, इस मौके के लिए धन्यवाद जो आपने हमें आज रात दिया। पिता, पिछले 2 दिनों में आप जो अद्भुत कार्य करते आए उसके लिए भी धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि आज रात आपके दासी बिशप लडोना ऑसबॉर्न के द्वारा और भी बड़ा अद्भुत कार्य होगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज रात स्तुति और आराधना में अगुवाई करने के लिए क्यों ना हम मिलकर आराधना टीम डेस्टिनी प्रेस का स्वागत करें। Church, and welcome to our very last session for PB 2021. Now, can you believe it's already our last session? Have you been blessed by Project Barnabas so far? And if you have been blessed, can you just type it in the chat right now? I am blessed. Come on, I want to see you type it in the chat right now. And as we begin our worship session today, we just want to take this time to celebrate God for His goodness and faithfulness over our lives. He is the God of miracles, He is the God who can do all things, and He is the God who has never lost. Don't you agree with me? Let's go. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of Mary Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're
satisfied. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here to guide me the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Yeah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen. Church, as we continue to worship this morning, let us take a moment to remember what Jesus has done for us. So close your eyes, lift your hands, and sing this verse along with me. I was a rich
was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the castle, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into the glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. Because the sons and daughters, we are ransomed by our Father through the blood. There's nothing stronger than the wonder-working power of the blood. Because the sons and daughters, we are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glory to His name. Glory to your name. Glory, glory, glory to the Lamb.
worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our hands in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. Welcome to PB 2021 Uncommon Conference. We have chosen the theme Uncommon to reflect who we are. We are a group of uncommon people sharing a common purpose. As a global apostolic church movement, we are united in the mission of declaring the glory and the love of Jesus Christ to the nations. We are committed to live the redemptive life given by Christ through spiritual restoration and economic empowerment.
We are a connected apostolic community of churches globally. This is what HSG Global Family is. This is who we are. Wow, what an amazing time of worship we just had. You know, the thought of the big family of HSGGF from various locations coming together to lift up the name of Jesus and declare His goodness brings such a joy to my heart, and I'm sure it is for you as well. Hi, my name is Ruben, and I'm the proud pastor of the Sanctuary of Glory, Penang. God is good, and He deserves all our praise and adoration, and we will continue to do so through our giving right now. Let me bring you to 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, which says that if each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all time, having all that you need, you will abound in every good work. You know, one of the greatest aspects of Christianity is the experiential part. The faith that we have is not about piousness of religious rules or practices, but an adventure of seeing God's blessings unveiled before our very eyes as we follow and put our faith in Him. God gave us His Word, not just for us to read or to believe in it, but for us to experience it. Thus, in this time of sowing, when we give and give cheerfully, we're going to experience again and again in our lives what is written in the passage of scriptures that we just read just now. We are giving an opportunity for God to turn what we have read in the Word into something that we can tangibly see, touch, and experience. The breakthroughs, the blessings, and the abundance. The promise is as big as it comes, because you can be sure that God will absolutely do it, and He will deliver this promise when we take the step of generosity and faith. So come and believe together with me that according to 2 Corinthians here, when we give, He will bless us abundantly, so that in all things, at all times, having all that we need, we will abound in every good work. Amen. We are truly opening the door for God to demonstrate the reality to us once again. Let us lift up our investments right now as I lead us in a time of prayer. Heavenly Father, we thank You for Your promises are always true. We are reminded that You are the giver. We are the recipients as we put and take this step of faith in sowing into Your kingdom. I pray, Lord, as I represent You towards Your people here, that they will be the head and not the tail, above and never beneath. Lord, open every doors of opportunities and of prosperity, but close every doors that will bring about destruction and distraction. We are ready for this great adventure that You're about to bring us in, because You are faithful and You are generous. Bless everyone that is here right now. We pray all this in the name of Jesus. Amen. 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 The information is written in your screen right now. Let's participate in this great adventure of blessings. Thank you for giving to the Lord. Hello everyone, Namaskara. My name is Pastor Ben-Hur Binni, and I am the founder and pastor of DGW Worship Center, Raichur, Karnataka, India. And I'm so blessed to be part of HSGGM family, and the teachings what I received, the love what I received from Pastor Daniel and the entire team is absolutely, unexplainable. To just share about this song is actually a dream come true for us. When we started this ministry 4 years back, we had nothing, there was no team at all, but we had this mission to raise a generation who will work towards the harvest. And this song is a cry, this song is a call for everyone to unite, come be united and labor together for the harvest. So I hope this song will be a blessing to you. In Jesus' name, amen.
ಪ್ರೀತಿಯು ಅಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಲೋಕವು ಕುಂದುತ್ತಲಿದೆ, ಅಂಧಕಾರವು ತುಂಬಿದೆ, ದೂರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದೆ. ಬೇಳೆಯು ಬಹಳ, ನನ್ ಬಲವು ಸಾಲದು, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು, ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನನ್ ಶುದ್ಧಿಸು, ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನನ್ ಶುದ್ಧಿಸು. ತಲೆಯು ತಗ್ಗಿಸದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಿರುದಾನು ನೋಡುತ್ತ ಓಡುವೆ. ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ನನ್ ಬಲವು ಸಾಲದು, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು, ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನನ್ ಶುದ್ಧಿಸು, ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನನ್ ಶುದ್ಧಿಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ನೋಡಿ ನಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ನೋಡಿ ನಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ. ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ನನ್ ಬಲವು ಸಾಲದು, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು. ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ನನ್ ಬಲವು ಸಾಲದು, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು. ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ನನ್ ಬಲವು ಸಾಲದು, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು. ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ನನ್ ಬಲವು ಸಾಲದು, ನಿನ್ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು, ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು.
and greetings. We are so glad that you are here with us. Our speaker is Bishop Dr. LaDonna Osborne. She is the CEO of Osborne Ministry International, which is a global missionary organization that was founded by her parents in 1949. She is also the founder and president of Women's International Network. Osborne Ministries International of 72 years have been an incredible blessing to tens of thousands of people in over 100 nations. Lives have been transformed. Sickness and suffering are being healed. Faith, hope, and love are created in the hearts of the people who hear the message of God's love. Today you can encounter Jesus of the Bible through Dr. LaDonna's sharing when you will believe God's word. आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है इस प्रोजेक्ट बारनबास 2021 के कॉन्फ्रेंस में, जो एक ऐतिहासिक सभा है जो ऐसे समय में आयोजित की जा रही है जब हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम ये सुने जो हमारे लिए लाया जा रहा है। मैं आपको यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ आपके अगुओं को, उनसे हम बेहद प्यार करते हैं। मेरे मम्मी पापा का एक गहरा रिश्ता था पास्टर छिया और पास्टर ओंग के साथ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इस बात की सराहना करती हूँ कि यहाँ पे मुझे न्योता दिया गया सेवकाई करने का। आपके लोगों के मध्य में, अगुओं और कलीसियाओं के मध्य में आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आई हूँ एक आवाज़ बन के, मैं ऐसी आवाज़ बन के आई हूँ जो आपको उत्साहित करे। मैं अगुवाई करती हूँ 1000 कलीसियाओं की। मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ, मैं सिखाने वाली एक बिशप हूँ और कलीसियाओं की देखरेख करने वाली हूँ। मुझे सच्चाई पसंद है। मैं कलीसिया से प्यार करती हूँ, प्रभु के लोगों से प्यार करती हूँ और मुझे प्यार है उस सामर्थ की जो प्रभु ने हम लोगों को दिया है ताकि हम उसके प्रतिनिधि बने, ताकि हम उसके सुसमाचार की घोषणा करें। अब इस दुनिया में हमारे बिना, हम जो उसके चेले हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, जो उसके कार्य को लेके जुनून रखते हैं और बिना हमारे ये दुनिया खोई हुई है, पर हम हैं तो आशा है। हम इस बिखरी हुई दुनिया के लिए आशा का कारण है। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ उसे ग्रहण करें और पवित्र आत्मा को आपके दिल में कार्य करने दे, कि आत्मा हमें सिखाए इन सच्चाई को कैसे कार्य करने दे हमारे खुद के जीवन में, हमारी सेवकाई में और हमारे प्रभाव के क्षेत्र में जहाँ हम हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि हम तुझ में एक हैं और हम तेरे चरणों में बैठते हैं और हमसे आप बातें करें ताकि आपका जुनून हमारे दिल में एक अग्नि समान जले और हम सच्चाई में ले चले। ऐसा ही हो यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस पहले सत्र में सुसमाचार के बारे में। कितना दिलचस्प है ना, बहुत सरल विषय। आपको लगा होगा कि मैं कुछ अनोखी बात लेके आऊँगी, लेकिन सुसमाचार अपने आप में अनोखा है। वह इतना सरल भी है कि कोई भी बच्चा भी समझ जाए और इतना अनोखा कि आप अपने पूरे जीवन भर उसका अध्ययन करो और कभी भी उसकी सच्चाई या ख़त्म नहीं होगी जो यीशु मसीह के सुसमाचार में रखी है। वह इतना सामर्थी है। तो मैंने पढ़ाई की है और मैंने थियोलॉजी किया है, डॉक्टरल डिग्री लिया है, तो मैंने पढ़ाई की है। मैं ये सारी बातें जानती हूँ जो मसीहत के धर्म में होती है और मसीहों के विश्वास में होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन अभी तक परमेश्वर की सारी सच्चाइयाँ खोजना बाकी है। मैं कई सारे विषय में लेके आ सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, कई सारे नाम हो सकते हैं उनके विषयों के, लेकिन जो आधार है वो परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर की जो योजना पाप और अनाज्ञाकारिता के वजह से रुक गई थी, वो यीशु के कार्यों के द्वारा पुनर्स्थापित हुआ और आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। आइए हम बात करें रूपांतरित करने वाले सुसमाचार के बारे में।
आज मेरी चिंता ये है कि मैं आपको प्रभावित करूं कि सुसमाचार सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, कि सुसमाचार सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ना ही वो सिर्फ एक सिद्धांत है, और ये सिर्फ कई बातों में एक बात नहीं है। यह एक सामर्थ है, एक सच्चाई है जो जीवनों को रूपांतरित करती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं कई मसीहों को जानती हूँ जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत अधूरा है। उनके जीवनों को देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो सुसमाचार को समझते भी हैं। हाँ, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर जानते होते सुसमाचार के सामर्थ को तो उनके जीवन ज़रूर रूपांतरित होते। जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, आप देखते हो कि उनका जीवन बहुत ही बेकार है, उस समय में बहुत निराशा से भरा हुआ है, लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हो कि सुसमाचार उनके जीवन को बदल देगा? क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आशाहीन है। अगर वो आशाहीन है तो परमेश्वर में सामर्थ नहीं। जीवनों को बदलने वाला उस सुसमाचार में हमारा विश्वास हो। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करें। यहाँ यीशु ने उस लहू बहने वाले स्त्री से ये कहा, मरकुस 5 उसके 34 में, कि उठो और अपने रास्ते जाओ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हम क्या विश्वास करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो विश्वास है वही हमारे विश्वास का नींव बन जाता है। हम जो विश्वास करते हैं वो हमारी जीवन शैली बन जाती है, और हम जो विश्वास करते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। यीशु ने कहा, तुम सच को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो अगर हमारे जीवन में कोई हिस्सा है जो आज़ाद नहीं है, अगर आपके जीवन का ऐसा कोई हिस्सा है जहाँ पे निराशा है, लतें हैं, या कोई डर है, कोई भय आपको रोके हुए आप झुलस रहे हैं, दोषी भावना है या बीमारी है, तो ये परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है। तो उस जगह में आपको आज़ादी खोजनी है। यीशु ने कहा कि सच्चाई को खोजे सच्चाई को और आप आज़ाद हो जाओगे। आज़ाद होने के लिए सच्चाई को खोजें। चलो हम सुसमाचार की ओर देखते हैं। सुसमाचार क्या है? मैं बाइबल को एक कहानी कहती हूँ। भले ही आप उसको उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक देखें, वो एक ही कहानी है। भले ही आप कोई भी बाइबल उठा ले, वो एक ही कहानी है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। सुसमाचार एक ही कहानी है। तो मैं आज आपके सामने यही बात रखना चाहती हूँ कि बाइबल कैसे एक ही कहानी है। मत्ती 4:23 में ऐसे लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहाँ हम ये सीख सकते हैं कि सुसमाचार ऐसे ही कोई शब्द नहीं है, ये बाइबलीय शब्द है और सच्चाई है जिसका प्रचार यीशु करता रहा। अब हम देखें मत्ती के 24:14 में, जहाँ यीशु के बारे में ऐसे लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु ने ये कहा कि सुसमाचार का प्रचार हर जगह किया जाएगा और फिर अंत आएगा। इसका मतलब सुसमाचार को देश देशों में प्रचार किया जाएगा। सुसमाचार की घोषणा हर देशों में होनी ही चाहिए। अब हम देखें मरकुस का 16:15 में, उसने अपने चेलों को अपने पुनरुत्थान के बाद ये कहा, उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु आया और हर जगह सुसमाचार का प्रचार किया, और सुसमाचार है जो हर सृष्टि को प्रचार किया जाएगा, उसकी घोषणा होगी हर जाति में। और यीशु ने अपने चेलों को भी यही कहा कि सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार एक आज्ञा है, अनिवार्य है। अब हम देखेंगे रोमियो के 1 में, जो मेरा बहुत पसंदीदा भाग है, 1:16, जहाँ पौलुस रोमियो की कलीसिया से कुछ कह रहा है। यहाँ पौलुस ने कहा, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी और यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि उस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे कि लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि सुसमाचार जो है विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो
उद्धार और संपूर्णता लेके आता है। तो सुसमाचार क्या है? अनेक विषयों में एक विषय नहीं है। सुसमाचार परमेश्वर के दिल से आता हुआ एकमात्र समाचार हमारे लिए है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर की भलाई क्या है, उसकी योजना क्या है। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य हमें दिखाता है। सुसमाचार परमेश्वर कौन है वो हमें समझाता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में एक जगह दे सकते हैं, एक स्थान दे सकते हैं और परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवनों में होने दे सकते। सुसमाचार को हम कई नाम दे सकते हैं, लेकिन सुसमाचार एक प्रकाशन है जो हमें परमेश्वर के छुटकारे के संदेश को देता है। सुसमाचार प्रकाशन लाता है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में, परमेश्वर क्या सोच रहा है हमारे लिए। सुसमाचार पिता परमेश्वर के हृदय को दिखाता है। सुसमाचार हमें पिता परमेश्वर के प्रेम को समझाता है। सुसमाचार की कहानी में हम और आप हैं। सुसमाचार उस बात का उत्तर है, हर उस बात का उत्तर है कि दुनिया आज ऐसे क्यों है। इसीलिए सुसमाचार जाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुसमाचार हम पाएंगे तो परमेश्वर के साथ हमें शांति मिलेगी और परमेश्वर की योजना हम जानेंगे। परमेश्वर में होके हमारा हर डर खत्म हो जाएगा, हमें आज़ादी मिलेगी और परमेश्वर में हम आज़ाद हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है। आप परमेश्वर को जान जाओगे, मसीह को जान जाओगे, आपकी सृष्टि क्यों हुई है इस बात को जान जाओगे और किस बात के, किस कारण के लिए आप यहाँ हो उसको सुसमाचार के द्वारा आप जान जाओगे। सुसमाचार को मैं 4 भागों में देख सकती हूँ और वही भाग में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अलग अलग संदर्भ है ये। पहला संदर्भ, परमेश्वर ने जो सृष्टि की। उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। ये पहला संदर्भ जो है, ऐसा समय जब परमेश्वर ने पृथ्वी और आसमान की सृष्टि, ये सारी सृष्टि का संदर्भ है। और इसी संदर्भ में हम जान पाते हैं पहले 2 अध्यायों में कि परमेश्वर ने कैसी सृष्टि की, क्यों सृष्टि की। और इसी संदर्भ में हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर की पहली बार उसके बारे में उत्पत्ति में ही लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी की सृष्टि की। पहले 1-2 वाक्य में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। यहाँ परमेश्वर का परिचय हमें मिलता है। यहाँ कोई प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि परमेश्वर होता है। परमेश्वर है और यही सच्चाई है। और दूसरे वाक्य में हम देख सकते हैं कि ऐसा लिखा है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। परमेश्वर की आत्मा, उसकी उपस्थिति, वो है हमारे मध्य में। दोस्तों, परमेश्वर है। और तीसरे वाक्य में हम समझ पाते हैं परमेश्वर जो वचन है, क्योंकि तीसरे वाक्य में ऐसे लिखा है परमेश्वर ने कहा और ज्योति हो गई। तो यहाँ हमारा परमेश्वर से परिचय हुआ कि परमेश्वर वो वचन है। और बाद में हम सीखते हैं कि वही वचन देहधारी होके परमेश्वर की महिमा को छोड़ के हमारे मध्य में आया, यीशु मसीह, और हमारे जैसे जिया और हमारे छुटकारे के लिए उसने वो कार्य पूरा किया। आप ये सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। पहले ही उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने ही हर एक की सृष्टि की है और जो इंसान को चाहिए उसके लिए भी हर बात की सृष्टि परमेश्वर ने ही की है। और करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि ये सब कुछ अच्छा है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा कि चलो हम इंसान को बनाएं अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में। और उसने सृष्टि की। दूसरा वाक्य यही बताता है कि उसने उस बात की सृष्टि की और कहा कि उसे हर बात के ऊपर, हर सृष्टि के ऊपर अधिकारी बना दे। अगले वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की और हर बात के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। तो हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। सारी सृष्टि बनाने के पीछे की उसकी योजना हमें समझ आती है। और फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है और इंसानियत को परमेश्वर ने आशीषित की। और परमेश्वर ने आशीष दे के कहा कि हर बात के ऊपर अधिकार तुम बन जाओ।
तो यहाँ पूरे परमेश्वर की सृष्टि का पूरी कहानी हमें मालूम पड़ती है, उसकी योजना मालूम पड़ती है। और जो दूसरा अध्याय है, परमेश्वर ने औरत की सृष्टि कैसे की उसके बारे में है। बात यह है कि उत्पत्ति 1 और 2 दोनों अध्याय में परमेश्वर की सृष्टि के बारे में है और परमेश्वर ने कहा कि ये सब अच्छा है। हर बात में एक योजना थी। वहाँ कोई बीमारी नहीं थी, वहाँ कोई भी लड़ाई नहीं थी, वहाँ कोई गरीबी नहीं थी, वहाँ कोई तंगाई नहीं थी और ना ही वहाँ पे खुदगर्जी थी। परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया। सृष्टि के बाद अब हम दूसरे संदर्भ में जा सकते हैं। हम चारों ओर जब देखते हैं तो हमें लगता है जब परमेश्वर ने सब कुछ सही बनाया, अच्छा बनाया, तो इतनी बीमारियां क्यों है, यहाँ इतनी परेशानियां क्यों है, महामारियां क्यों है, इतने सारे तकलीफें क्यों है। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं अकाल है, कहीं स्थानों में बिल्डिंग्स जो है नीचे गिर जाती है। लोगों को इतनी परेशानियां क्यों सहने पड़ रही है, ये क्या हो गया। तो जब कई लोग हमें ये सवाल पूछे कि दुनिया में इतनी सारी बीमारियां और इतने सारे परेशानियां क्यों हैं, तो हमारे पास उत्तर होना चाहिए। और उत्तर ये है कि परमेश्वर ने सृष्टि बहुत अच्छी बनाई। परमेश्वर ने इन बीमारियों को नहीं बनाया और परमेश्वर उतना ही दुखी होता है जितना कि हम। और हमें उत्तर मिलता है उत्पत्ति के 3 अध्याय में, सुंदर सृष्टि के पहले 2 अध्याय के तुरंत बाद, जहाँ शैतान का परिचय हमें मिलता है। दूसरा संदर्भ है शैतान जो धोखा लाता है। शैतान उस बगीचे में आता है जहाँ उसको आना ही नहीं चाहिए और सर्प का प्रवेश वहाँ है। और यहाँ शैतान आदम और हवा से ये कहता है कि तुम्हारे परमेश्वर को सब बातें नहीं मालूम है और तुम्हारे परमेश्वर को ये मालूम है कि तुम अगर ये फल खा लोगे तो उसके जैसे बन जाओगे, तो तुम परमेश्वर पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम उसके समान बन जाओ। परमेश्वर आपको धोखा दे रहा है। और शैतान जो है परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठाता है और आज भी ऐसे हो रहा है। मैं दुनिया भर में देख रही हूँ, बहुत सी परेशानियाँ हैं और कई सारे व्यक्ति जो है परमेश्वर के ऊपर उसका आरोप लगाना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने दंड दिया। हम ऐसा क्यों कहते हैं जबकि ये सब कुछ परमेश्वर के योजना और परमेश्वर के कार्य और चरित्र के विपरीत है। और सच्चाई तो ये है कि आदम और हवा जो है परमेश्वर के समानता और स्वरूप में ही थे। परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, वो परमेश्वर नहीं थे लेकिन परमेश्वर के जैसे थे। और परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठाने के बाद शैतान सीधा जाता है परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलने में। और आज भी ऐसे ही होता है, लोग जो है सीधा परमेश्वर के खिलाफ जाना चाहते हैं। और आज भी शैतान हमारे पास आके यही बातें कहता है कि क्या परमेश्वर ने सच में ये कहा था, तुम्हीं से कहा था, तुम्हारे लिए है क्या, इस संदर्भ के लिए है क्या, तुम्हारे लिए लागू होता है क्या, तुम इसके लायक हो क्या। और जब हम उस सवालों पर ध्यान देने लगते हैं तो तुरंत शैतान जो है पर हमसे ये कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसके योग्य नहीं है। अलग अलग दोष वो लेके आता है, अलग अलग डाउट, संदेह वो लेके आता है और फिर वो स्पष्ट कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं था। और जब हम उसकी बातें सुनने लग जाते हैं तो हमारा पूरा विश्वास का आधार जो है हिल जाता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं रख सकते हैं तो हमारा विश्वास कोई काम का नहीं। हम जो परमेश्वर के वचन से सीखते हैं उसी पे हमारे विश्वास का आधार बना रहता है और फिर हम उसे अनुभव करते हैं। इसीलिए यहाँ दूसरा संदर्भ है कि शैतान कैसे धोखा लाता है। इस संदर्भ में शैतान जो करता है उसके बारे में कई बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है, तो हम सिर्फ एक बात पर स्पष्ट अभी देखेंगे। आदम और हवा ने परमेश्वर पर सवाल उठाया। ये सवाल उठाते ही उनका रिश्ता टूट गया, क्योंकि हर रिश्ता जो है विश्वास की बुनियाद पर टिका रहता है। तो जब भी आप कई लोगों के जीवनों में कार्य करते हैं, पहले आप रिश्ता बनाए, तब आपके पास वो वचन रहेंगे और वो अधिकार रहेगा कि आप उनके जीवनों में कोई बात कह सको, घोषणा कर सको और वो उसे ग्रहण करें। उस रिश्ते के द्वारा आप मसीह के कार्य को उनके जीवन में कर सकते हैं। आदम और हवा का परमेश्वर के साथ रिश्ता था, वो सब एक आत्मा थे, लेकिन जब उन्होंने संदेह किया तो वो रिश्ता खराब हो गया। हम यहाँ पाप का परिणाम देख सकते हैं कि पाप के वजह से वो छुप गए परमेश्वर से, वो शर्मिंदा हो गए और वो रिश्ता खराब हो गया। हम शर्म के लिए बनाए ही नहीं गए थे।
दोषी भावना में रहने के लिए हम नहीं बनाए गए थे, अधिकार लेने के लिए हम बनाए गए थे और धैर्य के साथ परमेश्वर के प्रतिनिधि बनकर इस पृथ्वी पर चलने के लिए हम बनाए गए थे। पुराने नियम में हम बार बार ये देख सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय ये है कि हमारे लिए वो मदद भेजे। उत्पत्ति 3:15 मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने बाइबल में मार्क कर लें। 3:15 में परमेश्वर ने स्पष्ट ये सर्प को कहा, पहले आदम को पूछा, स्त्री को पूछा और स्त्री की गवाही के ऊपर सर्प को ये कहा कि तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वो तुम्हारे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर पिता के हृदय को हम यहाँ समझ सकते हैं। जब इन वचनों को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा उलझन वाले वचन ये हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल है। ये आने वाले उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी है, घोषणा है। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता जो उस समय आने वाला था, हाँ वो स्त्री से पैदा होगा, शैतान उसके पैरों पर कील लगवाएगा, हाँ वो कुचला जाएगा, वो सताया जाएगा और मारा भी जाएगा और ये बहुत ही बुरा होगा उस समय के लिए। लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु जी उठेगा और शैतान के सर को कुचल देगा। यहाँ शैतान का सर मतलब उसका अधिकार, उसकी जो ताकत है उसे यीशु तोड़ देगा। तो मेरे प्रियो, शैतान का जो सर है, उसका जो अधिकार है, यीशु ने कुचल डाला। मसीह के आने से पहले शैतान का लोगों पर अधिकार था, लेकिन परमेश्वर ने हमें वही नहीं छोड़ दिया। मसीह के द्वारा होकर परमेश्वर ने उसके अधिकारों को ख़त्म करके हमें जय के उत्सव में परमेश्वर लेके आया। और इसी बात की भविष्यवाणी और घोषणा उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने की, जब ये कहा कि तेरे सर को स्त्री का बीज कुचल डालेगा। पाप में गिरते ही आदम और हवा का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहीं छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया। परमेश्वर ने उस बात की घोषणा की और मसीह के द्वारा उनको खोज डाला जो परमेश्वर से अलग हो चुके थे। और आज भी परमेश्वर हमारे द्वारा उनको खोजता है जो खोए हुए हैं और उन्हें अपने में एक कर लेना चाहता है। परमेश्वर इसलिए नहीं इंतज़ार कर रहा है कि किसे वो नाश करे, किसे वो दोषी ठहराए, लेकिन परमेश्वर इसीलिए है कि वो किसे बचा ले और अपना बना ले। हमारी गवाही के द्वारा और परमेश्वर यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाएगा, अपनी ओर लाएगा। इस बात का विश्वास आप ज़रूर करें। यहाँ हमने सीखा कि क्या अच्छा था और कैसे बुराई आई। इन दोनों संदर्भों को हम बहुत स्पष्ट तरीके से उत्पत्ति 1 और 2 में सीख सकते हैं। ये 2 संदर्भ है जो हमने सीखे थे, परमेश्वर की सृष्टि, उसकी योजना, और दूसरा शैतान का धोखा। जब हम पहली बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर का चरित्र क्या है और वो कौन है हमारे लिए, उसकी योजना क्या है, तो हम शैतान के सारे चालों को समझ पाते हैं और परमेश्वर का कार्य करना हमारे लिए आसान हो जाता है। परमेश्वर की सृष्टि को बनाने के समय परमेश्वर सृष्टि, और दूसरा इवेंट तब हुआ था जिसको हम कहते हैं जब आदम गिरा, जब उसने पाप में प्रवेश किया, जब धोखेबाज आया और उसने आदम और हवा के मन में परमेश्वर के प्रति शक पैदा कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुने, जो पहला पाप था, जो असली पाप था, वो फल खाना नहीं, जो असली था वो परमेश्वर पर शक करना। जिस समय उन्होंने परमेश्वर पर शक कर दिया, उस समय उनका विश्वास काम में नहीं आया और उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ खराब हो गया। इसलिए फल का खाना अनआज्ञाकारिता को दिखाता है। अनआज्ञाकारिता हमेशा शक करने का नतीजा हो। इसीलिए हम अपने विश्वास करते हुए हृदयों को सुरक्षित करते हैं। इसीलिए हम अपने हृदयों में विश्वास को पैदा करते। आप में से कई लोगों ने बहुत लंबे समय तक परमेश्वर की सेवा की। आपके जो अगुए हैं वो पूरे संसार में लोगों की जरूरतों के साथ मिल रहे हैं, पूरा कर।
हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए कि सबसे पहले वो परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे लिए वो सबसे पहला नंबर 1 काम लोगों की मदद करें कि वे परमेश्वर पर विश्वास करें। अगर वे परमेश्वर पर विश्वास कर सके, बाकी चीजें सब अपने आप अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि अगर वे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं, अगर वे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं तो वो परमेश्वर की आज्ञा मान सकते। देखते होंगे कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को मुश्किल होता है कि वे परमेश्वर पर विश्वास कर सकें, क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसा जगह है, एक एरिया है उनके जीवन में जहाँ पे वे विश्वास नहीं कर। जरा आप इसके बारे में सोच कर देखें और जरा ये सोच कर देखें कि ये किस तरीके से आपके जीवन पर लागू हो। जब आदम और हवा ने परमेश्वर पर शक करना शुरू किया, उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान पा रहे थे और इसीलिए परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहे। परमेश्वर ने दुष्टि के बारे में क्या किया, क्योंकि जब हम उत्पत्ति अध्याय 4 तरफ जाते हैं, उस तक पहुँचते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यह पाप का फल है। दुश्मन का हमारे आम जीवनों पर प्रभाव डालना शुरू करना देख लेते हैं। आप केन और हाबिल को ही देखिए। आप देखते हैं कैसे एक भाई दूसरे को मार रहा है। आप देखते हैं ईर्ष्या, आप देखते हैं अपने बारे में सोच, आप देखते हैं किसी को मौत के घाट उतार देना, और आप देखते हैं परेशानियां, आप देखते हैं दर्द, आप देखते हैं निराशा। और जब तक आप अध्याय 4 तक पहुँचते हैं, आप देखते हैं एक ही मनुष्य बहुत सारे विवाह कर रहा है। आप देखते हैं रेप, आप देखते हैं कैसे औरतों के ऊपर आदमियों द्वारा अत्याचार हो रहा। यही है जो दुनिया में आज भी चल रहा है। आप जो कुछ भी आज अपने आसपास देखते हैं, आप ये देखते हैं कि मानवता कितनी गंदी हो गई है, दुष्ट हो गई। जो अत्याचार लोग एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं, उसको आप कभी कभी इस बात को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो परमेश्वर की योजना में था ही नहीं। इसकी परछाई शैतान के हृदय में है, इसकी परछाई मनुष्य के शत्रु में है। वह जो दुष्ट, वह जो मारने, चोरी करने और नाश करने आता है, और वह जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, वो शुरू से ही एक झूठा रहा है। वह जो सबको भ्रष्ट करता है, मानव जाति को। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा उसके बाद जितने लोग पैदा हुए कि हम सब ने पाप किया। वो कौन सा पाप है जो हमने किया है? शुरुआत में नहीं, क्योंकि हम तो पाप के नतीजों में ही पैदा हुए। सोचिए, एक औरत है जिसको किसी क्राइम के लिए, किसी पाप के लिए उसको जेल में डाला जाता है कि वो जेल में ही रहेगी अपने पाप के। और फिर जब वो जेल में जाती है, उस समय वो गर्भवती। अब मुझे पता है कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जो बच्चे जेल में पैदा होते हैं उनके लिए अलग अलग नियम कानून है, जहाँ पर गर्भवती माएँ बच्चे को पैदा करेंगी। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उस सिद्धांत के बारे में। अगर एक औरत पर ये दोष लगाया जाता है कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसको जेल होना चाहिए, और वो गर्भवती है, बच्चा कहाँ पर पैदा होगा? ऑफ कोर्स वो जेल में पैदा होगा। अब वो हमारी स्थिति को समझाता है। हमने कोई पाप नहीं किया, पर हम उसी जेल में पैदा हुए जहाँ पर माँ को रखा, जहाँ पर हमारे उन माता पिता को रखा गया जिन्होंने पाप किया और जिनको उनके पाप के लिए सजा भी दी गई। अब जब बच्चा बड़ा होता है जेल में, उसके दोस्त कौन होंगे? कोर्स बाकी जो जेल के लोग हैं, जो कैदी हैं, वही उसके दोस्त होंगे। कौन? उसके मनोवृत्ति जेलर के प्रति या उस अधिकार के प्रति जो उसको ये कहता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा रहेगा। और वो बच्चे जो जेल में पैदा होते हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी रहेगी, उनको क्या प्राप्त होगा, उनको दूसरे कैदियों से क्या प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं हम किस तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। हम जैसे ही इस पाप भरी दुनिया में पैदा होते हैं, यही सब कुछ हमारे साथ होता है। ये संसार हमको प्रभावित करता है, और चाहे कुछ भी हमारी परिस्थिति हो, हम एक ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ पर हमारे व्यक्तित्व को ऐसे पहचाना गया है जैसे जेल में रहता हुआ बच्चा। हमें मदद की जरूरत है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। अब परमेश्वर ने इसके लिए क्या किया? यह हमारे उस तीसरे इवेंट की ओर लेकर जाता है जो सुसमाचार में। मैं उसको परमेश्वर की जगह लेने वाला किस नाम से कर, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जो आयतें हैं वो आपको समझा। उत्पत्ति 1 और 2 परमेश्वर की सृष्टि, उत्पत्ति 3 शैतान का धोखा, उत्पत्ति 4 अध्याय से लेकर मलाकी तक पूरा हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने इंसानों के साथ, मनुष्यों के साथ एक बातचीत रखी और उसके साथ काम करता रहा, ताकि उसकी जो मनुष्य जाति और मानवता के लिए एक योजना थी वो पूरी हो सके। हम परमेश्वर को देते हैं, हम देते हैं उसकी
उसकी महिमा, हम देखते हैं उसकी दया, हम देखते हैं उसका न्याय, उसका प्यार, उस कृपा और उसका उद्देश्य, उसकी इच्छा। और हाँ, आप फिर ये देखते हैं कि किस तरीके से मनुष्यों के लिए ये कामयाब रहा, मनुष्यों के लिए ये हो ही नहीं सकता ऐसा रहा। परमेश्वर के बिना मनुष्य वो अपना वायदा नहीं रख सके, इजरायली अपना वायदा नहीं रख सके। वो चाहते थे कि सब कुछ उनके साथ अच्छा हो और वो अच्छा कर नहीं सके। वो हमेशा दुष्ट की तरफ, शैतान की तरफ मुड़ मुड़ के वापस जाते रहे। वो उनकी आदत बन चुकी। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा वफादार रहा। और जो मानव जाति, दुष्ट मानव जाति के लिए एक चुनौती, अब हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तरफ, और यहीं पर मैं जिसको बुलाऊं, मैं जिसका नाम लूंगी, परमेश्वर ने हमारी जगह ले ली। उस बात को हम यहाँ पर डिस्कवर करते हैं, हम खोजते हैं। वो आया और वो मनुष्य रूप में आया। उसने आया, वो आया ताकि वह असली इंसानियत को दिखा सके, मानवता को दिखा सके, अपने एक उज्जवल जीवन को, उत्तम जीवन को दिखा सके। वह जीवन जो हम जीते जब हम मसीह में आ जाते, उसको स्वीकार करते और जो हम विश्वास करते हैं, उसने पहले से ही, हमारे जन्म से पहले से ही हमारे अंदर डाल दिया। हम ज्यादा से ज्यादा मसीह के समान बन जाते हैं। यही से ये आइडिया, वह हमारे लिए उदाहरण वह है जो अंत तक चलता रहा। हमें पता है ये कहानी जहाँ पर वह उसको दोष दिया गया, उसको धोखा दिया गया। एक ऐसा इंसान जिसने कुछ भी नहीं किया, एक इनोसेंट मासूम इंसान, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, पर ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर की योजना थी। आप ये शाया नबी उसका 53 पढ़ेंगे, ये परमेश्वर की योजना थी कि उसको चोट पहुंचाया जाए। ये परमेश्वर की योजना थी कि हमारे पापों को उसके ऊपर रख दिया जाए। ये परमेश्वर की योजना थी कि उसके द्वारा उद्धार दिया जाए। ये परमेश्वर की योजना थी कि हमें एक मौका दिया जाए कि हम एक नया जीवन जीने के लिए दोबारा बचाए जा सके। ये परमेश्वर की योजना। जब तक रोमियो ने सोचा कि वो जीत रहे हैं, उनका जो धार्मिक शासक थे, जो दुष्ट थे, उनको जीत प्राप्त हो रही है, और हाँ, शैतान को भी ऐसा लगा कि वो बहुत खुश हो रहा है। और उसी समय परमेश्वर वो हमें एक ऐसा एकदम परफेक्ट बलिदान दे रहा था जो इस पूरी दुनिया के लिए बलिदान होगा, ताकि हम लोगों को निर्दोष साबित किया जा सके, ताकि हमको मासूम साबित किया जा सके। उसे दोष दिया गया ताकि हम मासूम बने, उसे दोष दिया गया ताकि हम साफ रह सके, उसके ऊपर पापों को लादा गया ताकि हम धर्मी बन सके। वो हमारी जगह, इसीलिए मैं इसको परमेश्वर हमारी जगह लेता है करके इस बात को बुलाती हूँ। हर चीज जो उसने की वो इसलिए की ताकि हमें ना करनी पड़े। वो मरा और मृत्यु को प्राप्त किया, उसने हमारी सजा को सफर किया, उसने हमारे उस जेल में जो हमें काटना चाहिए था समय, उसने वो एक तरीके से मैं कहती हूँ कि स्वयं बाप बन गया। एक जेलर, मान लीजिए, मैं कहती हूँ एक जेलर कभी कभी उस औरत के पास आता है, मान लीजिए, और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों का दाम चुका दूंगा, तुमने जो कुछ भी पाप किया उसका दाम चुका दूंगा, इसको जाने, तुम जाओ। उस जेल के खाने में जाकर कहता है, सुनो, तुम्हारा सारा दाम चुका दिया गया, जो कुछ भी तुमने किया है, अब तुम जाओ। क्या वो जाएगी? मुझे उम्मीद है वो जाएगी। सब नहीं जाते हैं। वो कह सके नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे सच्चाई नहीं बता रहे हो, जेलर कैसे मेरा दाम चुका सकता है? या वो अपने बच्चे को पकड़कर वहाँ से कहेगी, हाँ, अगर उसने मेरा दाम चुकाया है ठीक है, और वो उस दरवाजे से भागकर बाहर निकल जाए क्योंकि किसी ने उसका दाम चुकाया। ओ मेरे दोस्तों, ये सारे जो संदेश वहाँ है, जो लोगों तक जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा दाम चुका दिया गया, अब तुम आजाद हो, अब तुम जाओ, इस जेल के खाने से निकल जाओ, और तुम्हें अब सिर्फ एक परमेश्वर को स्वीकार करने के द्वारा ये करना है, तुम्हें विश्वास करना, ये संदेश तुम्हारा है। जो इतने भी पाप हमने किए हैं वो इतने बुरे थे, कोई भी यीशु मसीह के अलावा उसको कवर नहीं कर सकता। हमको अपने आप को उस क्रूस के ऊपर, क्रूस से देख, जब उसे मारा गया, हमें मारा जा रहा, जब उसके ऊपर कूड़े बरसाए गए, हमारे ऊपर बरसाए गए, जब उसके जख्म चंगे हो रहे थे, वो एक तरीके से हमारे जख्म चंगे हो रहे थे, जब वो खून बह रहा था और सारा खून जो उसने अपना डाल दिया था हमारे लिए, क्यों? हमारे पापों लिए। इफिसियों की पत्री में उसका 7वां आयत कहता है कि जो लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है वो हमारे पापों क्षमा, छुटकारा वो शब्द है जिसने हमें, यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम देकर हमें वापस खरीद लिया, ताकि शैतान का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना, ताकि वो हमारे ऊपर कोई अधिकार ना जता सके। यीशु मसीह ने पूरा हमारे पाप के लिए दाम चुकाया, हमें खरीद लिया है अपने लहू से। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें पहचानना है कि यीशु मसीह कौन है, उस पर विश्वास करना है, और फिर हम आजाद। यही वो संदेश है जो आज हमें दुनिया का परमेश्वर का दोस्त बनना इतना मुश्किल नहीं है। ये बहुत आसान है कि हम दोबारा जी उठे और एक नया जीवन प्राप्त करें। ये मुश्किल नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, और जो कुछ उसने हमारे लिए क्रूस पर किया
उस पर विश्वास करें और एक फैसला करें कि हम उसके पीछे चलेंगे। अब देखिए, आदम और हवा ने फैसला किया था कि वे परमेश्वर पर शक करेंगे और उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। हमें एक फैसला करना है कि हम वो जो पुराना जीवन है उसे छोड़कर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। ये बहुत ही आसान और यही वो शुभ संदेश है जो हमें दुनिया को ले जाना। तो मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को, इस वास्तविकता को आप जितने भी लोगों हो सके जाके सुनाइए ताकि उनके जीवन बच जाए। वह सुसमाचार जो जीवनों को बदलता है। मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह को तब दिया था जब मैं 7 साल, मुझे पता है, मैं एक मीटिंग में और मुझे एक दर्शन प्राप्त हुआ जहाँ पर यीशु मसीह एक बड़े से क्रूस के ऊपर टंगे हुए हैं, उनका लहू बह रहा है। और मैं एक 7 साल की बेटी होने के नाते मुझे सिर्फ 2 चीजें समझ में आई। सबसे पहली बात कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर टंगा हुआ है, और दूसरी बात कि वो जब क्रूस पर टंगा हुआ है क्योंकि वो मुझे प्यार की, इस बात ने मेरे दिल तोड़ दिया। मैं इतना रोई और उसी समय मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी। मैंने कहा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं तेरे जीवन को चाह, मैं तेरी माफी को चाह, मैं अपने जीवन को तुझे दे रही आ और मेरे अंदर जी, मैं चाहती हूँ। उस समय से मैंने प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना शुरू किया। हाँ, मेरे पास चुनौतियाँ थी, मैंने गलतियाँ करी, पर उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। वो मेरे प्रति वफादार रहा, वो मेरे साथ बना रहा, उसने मेरे द्वारा अपनी योजनाओं को पूरा किया। एक बार एक आदमी आया हमारे एक इवेंट्स में और उसे जाना जाता था, वो सबसे ज्यादा शराब पीता था शहर में, सबसे ज्यादा सिगरेट पीता था। वो आया, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसी समय नशे के पदार्थों से उसका एडिक्शन था, उसी समय छूट गया। वो अद्भुत तरीके से नया जीवन पाया और फिर उसी शहर में वो सुसमाचार प्रचारक बना और कई कलीसियाओं को बढ़ने में उसने मदद करी। ये इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर मैं आपको अब देती हूँ चौथी घटना जो सुसमाचार में हमारे लिए बताया गया है, कुछ ही मिनटों में। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं। उत्पत्ति 1 और 2 शैतान का धोखा देना है। उत्पत्ति 3 परमेश्वर का हमारा स्थान लेना है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और चौथा और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉइंट ये है जो आपको समझना चाहिए, वो ये है कि हमें उद्धार के लिए बुलाया गया है हमारे लिए। आप देखिए कि हम अगर एक सिर्फ क्रूस का संदेश लोगों तक छोड़ते हैं यहाँ, परंतु अगर हम लोगों को सुसमाचार कैसे उनके जीवन में लागू हो सकता है, उनके जीवन को बदल सकता है, आज के दिन नहीं सिखाते हैं, तो वो भी एक धार्मिक संदेश होगा। परंतु सुसमाचार सिर्फ एक धार्मिक संदेश नहीं है, वो लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए, मसीह की योजना को पूरा करने के लिए एक अच्छी खबर, जहाँ पर शैतान को हराया गया। आप इसके बारे में सोच के देखिए, हमारा उद्धार, हमारी वापसी। यूहन्ना 3:16 जो कि बाइबल की सबसे ज्यादा कॉमन आयत है जिसको याद किया जाता है। हालेलुया। तो अगर हम बात करते हैं हमारे उद्धार पाने के बारे में, हमारे बचाए जाने के बारे में, हमारे अनंत जीवन के बारे में, वो हम अभी इसी समय कर सकते हैं। उसको बात के लिए मत छोड़िए। जिस समय हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उसी समय अनंत जीवन हमारे अंदर शुरू हो जाता है और वहीं पर हमारा जीवन शुरू हो जाता है जहाँ पर हम संसार को एक गवाही देते हैं परमेश्वर की अच्छाइयों के बारे में। याद रखिए, यूहन्ना उसका 6ठा अध्याय और उसका 37वां आयत, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पास आएगा मैं उन्हें अपने से दूर नहीं करूंगा। सो आज भी यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए उनमें से इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह हम आप पर विश्वास करेंगे और उस योजना पर विश्वास करेंगे और आपका जो तोहफा यीशु मसीह के द्वारा है उस पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12वां आयत कहता है, अगर एक परमेश्वर का बच्चा उद्धार पाता है, वापस आता है, अपने तरीके से जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने शुरुआत से आपके लिए एक योजना बनाई है उस तरीके से जीवन जीने के लिए वो उद्धार पाता है। प्रेरितों के काम 2:31 में कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। अगर आपने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज आप एक महत्वपूर्ण फैसला करें, एक कि आप यीशु मसीह का पीछा करेंगे और यीशु मसीह को इजाजत देंगे कि वो जो योजना उसने आपके लिए बनाई है उस योजना को दोबारा आपके अंदर डाले ताकि आप अपनी परिस्थितियों से मुड़ सके, आपको वो साफ कर सके। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो आपको दोबारा वापस अपनी योजना में ला सके। मेरा सबसे बड़ा बेटा जब वो 16 साल का था, उसका नाम टॉमी है जो मेरे पिता के नाम पर ही रखा गया था, वो एक शराबी बन गया। मतलब इतना ज्यादा शराबी बन गया कि वो शराब और ड्रग्स पे इम्तिहान लेने लगा, या कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वो सिर्फ एक मिशन पे था जहाँ पर
वो अपने आप को बर्बाद कर सके। जब वो 16 साल का था, मतलब लगभग वो सोचने समझने की शक हो चुका था। वो अपना नाम भी किसी को बता नहीं सकता था। वो एक सेंटेंस, एक वाक्य भी बोल नहीं सकता था। वो ऐसा था जैसे कुछ लोगों को आप देखते हैं जिनका जीवन बिल्कुल नाश हो गया और फिर उसका परमेश्वर से मुलाकात कैसे। वो एक ट्रिप पे था, एक ड्रग ट्रिप पे। वो चाहता था कि वो एक रिकॉर्ड सेट करे कि वो एक समय में कितना नशा कर सकता है। आप सोच सकते हैं कैसा एक लक्ष्य था। ये एक बताता है किस प्रकार से शैतान लोगों के जीवनों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। मैंने इस प्रकार के उदाहरण के बारे में कभी भी नहीं सुना। वो अपने आप को बर्बाद कर देना चाह रहा था और शैतान मेरे बेटे को बर्बाद कर देना चाह रहा था। परंतु जब वो अपने आपे में आया जैसे उड़ाऊ पुत्र की तरह और उसने सिर्फ एक प्रार्थना करी, क्या थी? ठीक है प्रभु यीशु। उसी समय उसका दिमाग अपनी जगह आ गया। उसके अंदर जो ये नशीली पदार्थ लेने का एक एडिक्शन था वो उसी समय टूट गया, वो नया बन गया और उसके अंदर एक चमत्कार हो गया। यही चमत्कार सुसमाचार करता है। देखें, टॉमी को पहले से ही सुसमाचार का पता था, बस वो अपने तरीके अपना रहा था कि अपने तरीके से चल सके, परंतु परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। आज अगर आप देखें तो टॉमी है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और वो पूरे संसार में घूम घूम कर कई सालों से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वो परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे हैं, लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ाते हुए भी देख रहे हैं। ओह, मैं कहती हूँ आप प्रोत्साहित हो जाइए। अगर आपके बच्चे हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का नशा है, एडिक्शन है, कृपया उम्मीद मत हारिए। प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर की पहुंच से कोई भी दूर नहीं है। परमेश्वर को पता है कैसे हमारे बच्चों को वापस लाना है। सो उस पर विश्वास कीजिए और देखिए कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। ओह, जो वो उद्धार हमारे अंदर देता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, इन सारी सच्चाइयों को जो मैंने लिया है और आपके साथ अब बांटा है, इसको अपने जीवन में लागू करें ताकि आप लोगों तक एक गवाही का कारण बन सके। आपका जो जीवन बदला उसको बताएं। आज आपका दिन है ताकि आप विश्वास कर सकें, ये आपके लिए है और आप भी उसी शांति और एक जयवंत के जीवन के अंदर आप चल सकते हैं जो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना को पूरा करा है। इफिसियों में उसके दूसरे अध्याय में जहाँ पर आयत 1 है, वो कहता है उसने आपको जिंदा कर दिया। तुम जो पाप में मरे हुए थे, ओ हाँ, उसने आपको जिंदा कर दिया जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। मैं मरी हुई थी पर अब मैं जिंदा, पुत्र ने अपने राज्य में लाने के लिए मेरे अंदर शांति है जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है और ये सब उपलब्ध है आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा। याद रखिए ये आयत जहाँ पर हम पढ़ते, जहाँ पौलुस लिखता है, मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि वह वो सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए, क्योंकि इसी सुसमाचार में वो सारी सच्चाइयाँ हैं जो मैंने अभी अभी आपके साथ बांटी हैं। परमेश्वर की अच्छाई जो विश्वास से विश्वास के द्वारा जाहिर होती जाती है। वचन कहता है कि जब आप विश्वास के द्वारा जीते हैं, सो अब आपकी बारी है कि आप विश्वास करें। अगर आप पहले से ही विश्वासी हैं तो मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप और भी अधिक मजबूती से विश्वास करें उस सुसमाचार से जो आपके जीवन को बदल सकता है। उन सारे क्षेत्रों में जहाँ पर आपने ये कह दिया कि परमेश्वर नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आपने जैसा वो है वैसे स्वीकार कर लिया है और आपको लगता है कि जो भी आपकी परिस्थिति है परमेश्वर ने उसको सहने के लिए आपको शक्ति दी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बदलने की शक्ति दी गई है और आपको जयवंत होने के लिए बदलने की शक्ति दी है, सिर्फ सहन करने की शक्ति नहीं दी गई है। विश्वास करें, विश्वास करें, अपने ही विश्वास को चुनौती दें ताकि आप बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में देख सके कि आपका परमेश्वर बड़ा है और जो भी प्रॉब्लम, जो भी संकट आप सामना कर रहे हैं उन सब का आप सामना कर सके क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है। यह आपका समय है। बहुत सारी गवाहियां हैं जो आपको बता सकती हूँ। कई ऐसे हैं जो ऊपरी कसर से भरे हुए लोग हैं और उनको आजादी मिली है और बीमार लोग हैं जिनको चंगाई मिली है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक जीवन शैली है, उनकी जीवन शैली बदल गई। ऐसे परिवार हैं जो परिवारों को वापस परमेश्वर की योजना में रिस्टोर किया गया है, बचाया गया है। ओ, मैं आपसे कहती हूँ मेरे दोस्त, उस सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। अब मैं आपको इजाजत दूंगी और आपके जो भी सेवकाई है उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी ताकि आप उन फैसलों को अच्छी तरीके से ले सके जो आज आपको बनाना है। परंतु परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं आज आपसे बात करूं। आज के दिन उसे पता था आप सुनेंगे, उसे मालूम था कि उसके पास आपके लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश है। वो आपसे प्यार
करता है और वो चाहता है कि वो आपके जीवन में सबसे बीच का स्थान प्राप्त करे, ताकि आप दोबारा परमेश्वर में बने रहे, वापस आ जाए। जो कुछ भी आपका हक है उससे कम के लिए कभी भी राजी ना हो। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु के नाम में। We want everyone listening today to know truly the gospel is God's good news. The Bible says the gospel is the power of God that brings salvation to everyone who believes. God loves you so much that He sent Jesus to die on the cross on your behalf. Jesus rose from death. He is alive and is able to save anyone who comes to God by Him. And whosoever believes shall have eternal life. If you believe this good news and you want to receive the Lord Jesus Christ as your God and Savior, this is how you can do it. Pray this prayer with me as I lead you to make this important decision for your life. As you pray with your whole heart, believed, say aloud with me. Dear Lord, I have heard this good news of your love. I believe and I opened this door of my heart for you to come into my life. You said in the Bible, as many as receive you, to them you give the power to become the children of God, even to those who believe on your name. Lord, I believed. You have given me the power to become your child. Thank you, Lord. I pray and receive your new life in me in the name of Jesus Christ. Amen. There is another prayer blessing for you. God's desire is not only to forgive all your sins, but to heal all your diseases. Because Jesus Christ Himself took away our diseases and carried away our sicknesses. The Bible says God sent His word and healed the people. If you are suffering from sickness and disease and you believe what God says about your healing, we want to help you receive God's healing for your body. First, put your hands on the part of your bodies that are sick. If anyone who is suffering from mental illness or suffering from addiction, put your hand on your head. Second, as we pray for you, we want you to believe with all your heart and agree with the prayers. Say to your mind and heart, Lord, I believe and I received. Let me pray for you now. Dear Lord, as the truth of your healing becomes clear to them who are calling upon your name now, Lord, manifest yourself as the ever-present healer. With you, nothing is impossible. Confirm your truth presented. You are the same yesterday, today, and forever. We ask for your healing of their bodies, their minds, and hearts. We declare and release your power of healing into them. Now, everyone say this. I pray and receive your healing in the name of Jesus Christ. Amen. Now, if you have prayed these two prayers with us, we want you to text us at this number. In response, someone will contact you. It is so important to connect together because we want to help you grow in a relationship with God and also to affirm your experiences of God's love and power. God bless you and we'll see you again. वाओ, धन्यवाद पास्टर डेब्रा। कितना एक आशीषमय और प्रोत्साहन का संदेश हमें आज रात बिशप लडोना ऑसबर्न से सुनने को मिला। क्यों ना हम अपना सराहना चैट बॉक्स में टाइप करते हुए दें। याद रखें, परमेश्वर आपको प्यार करता है और वो आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहता है ताकि आपके और मेरे जीवन को परिवर्तित कर सके। यदि आपने पास्टर डेब्रा के साथ प्रार्थना की है और प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो आप व्हाट्सएप
करें इस नंबर पे जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि हम आपसे संपर्क करना चाहेंगे। या आप अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ प्रार्थना करे या किसी भी ज़रूरत के लिए, तो व्हाट्सएप करें और प्रार्थना कोई भी टीम का सदस्य आपके साथ ज़रूर संपर्क करेगा। आप सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप पीबी 2021 के हिस्से रहें। असामान्य, हम विश्वास करते हैं कि आपने कुछ नया इन दिनों में पाया है, चाहे आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया या आपको याद दिलाया गया कि आपको इस समय के लिए बुलाया गया है। हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपको प्यार करता है और आपकी देखभाल करता है। अगले हफ्ते और आने वाले बाकी हफ्तों में भी आप एतवार के आराधना में हमारे साथ सुबह 10 बजे यहीं पर शामिल होइएगा। इससे पहले कि हम खत्म करें आज की आराधना, क्यों ना हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे भी अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमेन। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप देखें। एक अच्छा रात आपका रहे। आप सबको अगले हफ्ते और अगले साल पीबी 2022 में मिलेंगे जल्दी।